یہ خبر میرے لیے کسی بجلی کے کوندے سے کم نہ تھی۔ میں حسب معمول صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا کہ ساجد کے الفاظ نے میرے اندر جیسے زلزلہ برپا کر دیا۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، سانس بے ترتیب ہو گئی اور پیشانی پسینے سے تر تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میری برسوں کی کمائی ہوئی عزت ایک لمحے میں مٹی میں ملنے والی ہے۔ سامنے ساجد کھڑا تھا، چہرے پر عجیب سا سکون، مگر آنکھوں میں یہ اٹل فیصلہ۔ اس کی خاموشی مجھے چیخوں سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غصے اور بے یقینی کے عالم میں بات کو دوبارہ دہرایا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے صحیح سنا ہے۔ آواز بلند ہوتی گئی، الفاظ سخت ہوتے گئے۔ میں اسے کوس رہا تھا، سمجھا رہا تھا، ڈرا رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر کا خوف بول رہا تھا۔ مجھے لوگوں کے طعنے سنائی دے رہے تھے، رشتہ داروں کی سرگوشیاں محسوس ہو رہی تھی، اور اپنی وہ پہچان ٹوٹتی دکھائی دے رہی تھی جسے میں نے عمر بھر سنبھالا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے اصولوں پر فخر کرتا آیا تھا اور چاہتا تھا کہ میری اولاد بھی انہی اصولوں کی عکاس ہو، مگر ساجد ہمیشہ میرے دائرے سے باہر کھڑا نظر آیا۔ میرے باقی بچوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو میں نے ان کے لیے چنا تھا، اچھی تعلیم، بہتر نوکریاں، معاشرے میں مقام، لیکن ساجد نے جیسے دنیا کی چمک دھمک سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ ایک سادہ سا مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا، معمولی سی آمدنی پر گزارا کرتا اور اسی میں خوش رہتا۔ اس کا یہ اطمینان مجھے ہمیشہ بے چین کرتا تھا، جیسے وہ میری محنت اور خوابوں کو بے معنی ثابت کر رہا ہو۔ میں نے اسے کئی بار قائل کرنے کی کوشش کی، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، مگر وہ اپنے راستے پر قائم رہا۔ لیکن اس دن معاملہ کچھ اور تھا۔ جب بات نکاح اور وہ بھی ایک عمر رسیدہ عورت کی آئی تو مجھے لگا جیسے اس نے حد پار کر دی ہے۔ میں نے آخری بار اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے کہا کہ بعض فیصلے عزت سے نہیں، انسانیت سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ بغاوت نہ ضد، صرف ایک سچائی تھی جسے میں ماننا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن بعد نکاح ہو گیا، لوگ ہنسے، طعنے دیے، اور میں نے خود کو سب سے الگ کر لیا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور ایک عجیب حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ وہ عورت جسے میں نے صرف عمر کے پیمانے پر پرکھا تھا، دراصل ایک بے سہارا بیوہ تھی، جس کے پاس نہ چھت تھی نہ سہارا۔ ساجد نے نہ صرف اسے عزت دی بلکہ اس کی زندگی کو سکون بھی دیا۔ محلے کے وہی لوگ جو کل تک مذاق اڑا رہے تھے آج ساجد کے عمل کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن میں نے چپکے سے ساجد کو دیکھا، وہ اسی سکون کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کے پاس اب ایک ایسی دعا تھی جو میرے پاس کبھی نہ تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے ساری زندگی عزت کو لوگوں کی نظر سے ناپا، جبکہ ساجد نے اسے انسانیت کے پیمانے پر پرکھا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید ہار میں نہیں ہارا تھا، بلکہ وہ سبق ہار گیا تھا جو میرا بیٹا جیت چکا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سختی سے تھامے رکھا تھا، خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ اولاد ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی راہ سے ہٹ ہی جاتا ہے۔ مگر اس دن ساجد کی بات نے میرے اندر جمع ساری برداشت کو توڑ دیا۔ میرا کلیجہ بے اختیار تیز ہو گیا، ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا، جیسے الفاظ کو بھی دھکا دے رہا ہوں۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میرا نام، میری عزت، سب کچھ سوال بن جائے گا۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے رشتے یاد آئے، لوگوں کی نظریں، وہ محفلیں جہاں میرا ذکر احترام سے ہوتا تھا، اور اب وہی سب کچھ طنز میں بدلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بولتا جا رہا تھا، مگر ہر لفظ کے پیچھے یہ خوف چھپا تھا جسے میں ماننا نہیں چاہتا تھا۔ ساجد خاموشی سے کھڑا سنتا رہا، جیسے میرے ہر جملے کو برداشت کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار پوری مضبوطی سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ بغاوت تھی نہ بدتمیزی، بس ایک عجیب سا یقین تھا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر رہا، اس کا فیصلہ دین کے دائرے میں ہے، اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤں۔ اس کی باتوں میں سکون تھا، مگر وہی سکون مجھے اندر سے جلا رہا تھا، کیونکہ میں اس سکون کو اپنی شکست سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے سختی سے جھڑک دیا، اس کے فیصلوں کو وقتی جنون قرار دیا، اور مستقبل کی وہ تصویریں کھینچنے لگا جن میں پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ میں نے اسے ڈرایا کہ کل کو وہ خود کو تنہا محسوس کرے گا، جب اس کے ہم عمر اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اسے نہیں،
خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنے نام، اپنی پہچان اور لوگوں کی رائے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میں باپ کم اور معاشرے کا قیدی زیادہ بن چکا تھا۔ ساجد نے میری باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے آنسوؤں کو گرنے نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، ایسا جملہ جس نے میرے اندر چھپی ایک پرانی یاد کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا اور ایک دم مجھے وہ دن یاد آ گئے جب اس کی ماں بیماری میں کمزور پڑتی جا رہی تھی اور میں اپنے کاموں اور دنیاوی مصروفیات میں گم رہا۔ اس کی آخری خواہشات، اس کی خاموش آنکھیں، سب کچھ ایک لمحے میں میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے فوراً اپنی کیفیت کو غصے میں چھپانے کی کوشش کی اور تلخی سے پوچھا کہ آخر وہ عورت ایسی کیا ہے جس کے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگا رہا ہے۔ اس بار ساجد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بتایا کہ وہ عورت دراصل ایک بے سہارا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے اپنے بھی اسے چھوڑ چکے تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے اس عورت میں کوئی خواہش نہیں دیکھی، صرف تنہائی دیکھی، اور وہ تنہائی اسے اپنی ماں کی آخری تنہائی جیسی لگی۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ساری زندگی رشتوں کو عزت کے پیمانے سے ناپا، مگر ساجد نے انہیں احساس کے ترازو میں تولا۔ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں بچی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں جیتے جیتے ہار گیا ہوں اور ساجد ہارتے ہارتے وہ مقام پا گیا ہے جہاں انسان صرف انسان بن جاتا ہے۔ میں نے غصے میں ڈوبے لہجے کے ساتھ اسے گھورا اور جیسے اپنے ہی الفاظ سے خود کو مضبوط بنانے لگا۔ میرے اندر یہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا رشتہ جس میں نہ دولت ہے نہ سہارا، وہ ساجد کو کیا دے سکتا ہے؟ میں اسے قائل کرنے کے لیے دلیلیں گھڑ رہا تھا مگر حقیقت میں اپنے ڈر کو الفاظ کا سہارا دے رہا تھا۔ ساجد خاموش کھڑا رہا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی مگر اس کے وجود میں ایک عجیب سی ثابت قدمی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف ضد نہیں، یہ کوئی ایسا فیصلہ ہے جس کے پیچھے کوئی گہری کہانی چھپی ہے، ایسی کہانی جس تک میری سوچ پہنچ نہیں پا رہی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل جیسے کسی اندیکھے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ ساجد نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی اب بھی موجود تھی مگر اس نمی کے پیچھے ایک پختہ عزم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے نہایت نرم مگر واضح انداز میں کہا کہ وہ میری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا مگر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جملہ میرے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ میں نے فوراً سختی کا سہارا لیا اور اسے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو وہ میری بات مانے یا پھر اس گھر کی دہلیز چھوڑ دے۔ یہ الفاظ جیسے میرے اختیار کا آخری ہتھیار تھے۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ باپ کی آواز ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے مگر اس بار مجھے اندازہ نہیں تھا میرا یہ فیصلہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا۔ ساجد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بچپن کی وہ نرمی اب فیصلہ بن چکی تھی۔ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ اگر اس کی خوشی کی قیمت گھر چھوڑنا ہے تو وہ یہ قیمت بھی ادا کر دے گا مگر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے جس عورت کا نام لیا اس نام میں ایک عجیب سا احترام تھا، جیسے وہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کو قبول کر رہا ہو۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا مگر میرے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا، شاید اس لیے میرے الفاظ مزید کڑوے ہو گئے۔ میں نے آخری بار اسے ڈرانے کی کوشش کی، اسے آنے والے وقت کے خوفناک منظر دکھائے، اس کی جوانی، اس کے خواب، سب کچھ دو پر لگتا ہوا بتایا مگر وہ ہر بار سن کر بھی نہ ٹوٹا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا کہ وہ جانتا ہے لوگ کیا کہیں گے، جانتا ہے کہ اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا مگر اس نے اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کیا تو وہ ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ جذبات کو کمزور سمجھا تھا مگر اس لمحے پہلی بار لگا کہ شاید کچھ فیصلے عقل سے نہیں احساس سے کیے جاتے ہیں۔ میں نے پھر بھی اپنے آپ کو سختی کے پردے میں چھپا لیا اور اس کے احساس کو محض وقتی جذبہ قرار دے دیا مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے ایک ایک لفظ نے میرے یقین کی بنیادوں میں درار ڈال دی تھی اور میں چاہ کر بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہر ممکن دلیل اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ کبھی میں نے اسے اس کی ماں کی یاد دلائی، کبھی بہنوں کا حوالہ دیا، کبھی خاندان کی عزت کا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گا، رک جائے گا
या कम से कम एक लम्हे के लिए डगमगा जाएगा, मगर साजिद जैसे अपने अंदर किसी और ही यकीन पर खड़ा था। वो खामोशी से सब सुनता रहा और आखिर में बस इतना कहा कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद वो इसे रोकने की बजाय उसके फैसले को समझने की कोशिश करती। ये जुमला मेरे दिल पर किसी पुराने जख्म की तरह लगा, एक ऐसा जख्म जिसे मैंने कभी भरने ही नहीं दिया था। मैंने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और सख्त लहजे में उसे आखिरी वार्निंग दे दी। मैंने कह दिया कि अगर उसने यही रास्ता चुना तो इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे और मैं उस औरत का नाम दोबारा अपने सामने सुनना भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस लम्हे मुझे लगा कि मैंने फैसला सुना दिया है कि मैं जीत गया हूँ, मगर साजिद ने कोई बहस ना की, ना ही कोई सफाई दी। उसने बस नजरें झुकाई और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे अंदर एक बेचैनी सी जागी। मैंने सख्त आवाज में उसे रोका और पूछा कि कहाँ जा रहा है। उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में नमी थी मगर लहजा पर सुकून। उसने कहा कि वो सोचने जा रहा है और साथ ही तैयारी भी करेगा। मैं उलझन में पड़ गया। मैंने मजीद सख्ती से पूछा कि कैसी तैयारी। उसने दरवाजे पर रुककर मेरी तरफ देखा जैसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता हो और फिर निहायत सादा अंदाज में कहा कि निकाह की तैयारी। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ मुंजमद हो गया। वो दरवाज़ा खोल कर चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया जैसे वक्त मेरे लिए रुक गया हो। कुछ देर बाद घर के बाकी अफराद मेरे पास आए। हर चेहरे पर परेशानी थी मगर हर एक के पास तसल्ली के अल्फाज भी थे। बड़े बेटे ने समझाने की कोशिश की कि साजिद हमेशा से ऐसा ही है, जल्दी ही खुद समझ जाएगा। बेटों ने भी यही कहा कि यह सब वक्ती है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा कि अगर शादी हो भी गई तो ज्यादा देर नहीं चलेगी, मगर इन सब बातों के बावजूद मेरे दिल को सुकून न मिला। मैं आहिस्ता से बैठ गया, सर अपने हाथों में थाम लिया। कमरे में मौजूद आवाजें मत्थम पड़ गई और मेरे जहन में सिर्फ साजिद के अल्फाज गूंजने लगे। एक अनजाना सा खौफ मेरे अंदर जगह बनाने लगा, ऐसा खौफ जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मुझे पहली बार लगा कि शायद इस बार मामला मुख्तलिफ है, शायद वो वाकई वापस ना आए। वो रात मेरे जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नींद आंखों से कौन सौ दूर थी और हर गुजरता लम्हा मुझे किसी अनजाने अंजाम की तरफ ढकेल रहा था। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मैं सिर्फ एक बाप नहीं रहा, बल्कि ये कैसी जिद का हिस्सा बन गया हूँ जिसमें जीत भी हार जैसी लग सकती है। साजिद के जाने के बाद घर की फिजा बदल गई थी। हर चीज वैसी ही थी मगर कुछ भी पहले जैसे नहीं रहा था। दरवाजा बंद होने की वो आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे हर बार मुझे याद दिला रही हो कि कुछ रिश्ते आवाज किए बगैर भी टूट जाते हैं। रात जैसे दीवारों से टकराकर मेरे अंदर गूंज रही थी। मैं चारपाई पर बैठा था मगर यूं लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही ना हो। घर के सब अफराद अपने कमरों में जा चुके थे और एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो सुकून नहीं बल्कि बोझ बनकर सीने पर बैठ जाती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी मगर वक्त जैसे ठहर गया था। आंखें बंद करता तो साजिद का चेहरा सामने आ जाता, वही ठहरा हुआ लहजा, वही इत्मीनान जो मुझे हमेशा बेचैन कर देता था। मैं जितना गुस्सा करता उतना ही अंदर कहीं एक डर जन्म लेता, एक ऐसा डर जिसे मैं तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। मैं खुद को बार बार यही यकीन दिलाता रहा कि यह सब वक्ती है, जवानी की जिद है, चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल के किसी कोने से एक और आवाज उठी, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर इस बार वो वाकई ना बदला तो। यही सोच मुझे अंदर से हिला देती। पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर गई, न नींद आई न सुकून मिला। सुबह फजर की अजान के साथ आंख खोली तो जिस्म थका हुआ था और दिल पहले से ज्यादा बोझल। वजू करते हुए जब मैंने आईने में खुद को देखा तो पहली बार लगा जैसे वक्त मेरे चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा है। बालों की सफेदी और आंखों के गिर्द हल्के जैसे रात भर की बेचैनी की गवाही दे रहे थे। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सब वक्ती है, मगर अंदर का असरब कम ना हुआ। नमाज के बाद मैं सहन में आकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी मगर मेरे अंदर की गर्मी कम नहीं हो रही थी। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे दिल अब भी उम्मीद लगाए बैठा हो कि साजिद वापस आएगा, दरवाजा खोलेगा और कहेगा कि उसने गलती कर दी। मगर दरवाजा खामोश खड़ा रहा, जैसे उसने भी मेरी उम्मीदों का साथ छोड़ दिया हो। कुछ देर बाद गली में जिंदगी की आवाजें उभरने लगी। बच्चे बस्ते उठाए स्कूल जा रहे थे
औरतें रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि शायद ये बात अभी तक बाहर न निकली हो, मगर यह सिर्फ मेरा वहम था। थोड़ी ही देर में बशीर आ गया। वो मेरा पुराना साथी था, बरसों की पहचान थी, मगर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। सलाम दुआ के बाद वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जैसे कोई राज बयान कर रहा हूँ। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। मैंने खौफ को संभालते हुए लाइल्मी जाहिर करने की कोशिश की, मगर मैं जानता था कि अब बात घर की चार दीवारी से निकल चुकी है। बशीर ने गहरी नज़र से मुझे देखा और धीरे से कहा कि लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा, कोई मजाक समझ रहा है और कोई इसे सच मानकर हैरान है। उसकी बातें सुनते हुए मुझे यूं लगा जैसे हर लफ्ज मेरे ऊपर पत्थर बनकर गिर रहा हो। मैं खामोश बैठा रहा, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। इसी लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि यह मामला अब सिर्फ मेरे और साजिद के दरमियान नहीं रहा। यह मेरी सोच, मेरी अना और मेरी परवरिश का इम्तिहान बन चुका है, और शायद अब मुझे फैसला करना था कि मैं लोगों के डर के साथ खड़ा रहूंगा या अपने बेटे के सच के साथ। बशीर की बात ने जैसे मेरे अंदर जलती हुई आग पर तेल डाल दिया। उसने धीरे से जो खबर सुनाई वो अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रही थी, बल्कि हकीकत बनकर मोहल्ले में फैल चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए बात को टालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में झलकती संजीदगी बता रही थी कि मामला अब मेरे ख्वाबों से बाहर जा चुका है। उसके बाद आने वाले लोगों ने भी वही किस्सा दोहराया, बस अंदाज बदल बदल कर। कोई हमदर्दी जता रहा था, कोई छुपे लफ्जों में तनस कर रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जिनके लहजे में तमाशा देखने का शौक साफ नजर आ रहा था। हर जुमला मेरे अंदर किसी चिंगारी की तरह गिरता और मेरे गुस्से को भड़काता जा रहा था। जुबैदा का जिक्र इस तरह हो रहा था जैसे वो कोई साजिश हो, जैसे उसने मेरे बेटे को फांस लिया हो। मैं सुनता रहा, मगर अंदर ही अंदर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे बेटे की नीयत पर नहीं बल्कि मेरी तरबियत पर सवाल उठाए जा रहे हों। आखिरकार मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं एक झटके से उठा और सख्त लहजे में ऐलान किया कि मैं खुद जाकर उस औरत से बात करूंगा। मेरे अल्फाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक फैसला भी शामिल था। घर से निकलते ही मेरे कदम तेज हो गए। गलियां वैसी ही थी, लोग वही थे, मगर आज मुझे हर चेहरा अजनबी लग रहा था, जैसे सब मुझे देख रहे हों, जैसे सबको मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और ज़हन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि मैं ये सब ख़त्म कर दूंगा अभी और इसी वक्त। आखिरकार मैं पिछली गली में पहुंच गया। सामने एक छोटा सा किराए का मकान था, सादा, खामोश और जैसे अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए। मैं चंद लम्हे दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मेरा गुस्सा अब भी मौजूद था, मगर उसके साथ एक अजीब सी हिचकिचाहट भी शामिल हो गई थी। मैंने दरवाजे को गौर से देखा, जैसे उसके पार कोई ऐसी हकीकत हो जिसे मैं देखना नहीं चाहता। आखिर मैंने हिम्मत करके दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक सादा सी औरत खड़ी थी, ना कोई बनावट, ना कोई चालाकी उसके चेहरे पर नजर आई। उसकी आंखों में थकन थी, मगर साथ ही एक वखार भी था जो मुझे एक लम्हे के लिए खामोश कर गया। मैं जो कुछ कहने आया था वो सब जैसे एकदम भूल गया। मेरे जहन में जो तस्वीर बनाई गई थी वो इस हकीकत से मेल नहीं खा रही थी। वो ना किसी जाल बिछाने वाली औरत लग रही थी, ना किसी साजिश का हिस्सा, बल्कि ये कैसी इंसान लग रही थी जो बस जिंदगी के बोझ तले दबकर भी खुद को संभाले हुए है। इस लम्हे मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं जिस जंग में उतरा हूँ उसके दोनों पहलू मुझे मुकम्मल तौर पर मालूम ही नहीं थे, और शायद सच वो नहीं था जो मैं सुनकर आया था, बल्कि वो था जो इस खामोश दरवाजे के पीछे खड़ा था। दरवाजा पूरी तरह खुलने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट ना आई। वो सुकून से खड़ी रही, जैसे मेरे अंदर उबलते हुए तूफान का उस पर कोई असर ही ना हो। उसकी यही खामोशी मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। मैंने सख्त लहजे में अपनी बात दोहराई, हर लफ्ज में तलखी भरकर, ताकि वो पीछे हट जाए, शर्मिंदा हो जाए और ये रिश्ता ख़त्म कर दे। मुझे लग रहा था कि मैं हक पर हूँ और मेरा हर जुमला एक बाप की गैरत की आवाज़ है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर निहायत धीमे आवाज़ में बोली, जैसे किसी ने शोलों पर पानी डाल दिया हो। अगर मेरी बात मुकम्मल हो गई हो तो वो कुछ कहना चाहती है। उसके लहजे में ना मुकाबला था, ना झुकाव, बस एक संजीदगी थी जो मुझे गैर मुतवक्का लगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से अब भी गुस्सा भरा हुआ था।
इसने आहिस्ता से कहा कि ना उसने कभी किसी को अपनी तरफ बुलाया, ना किसी के पीछे गई। उसके अल्फाज सादा थे मगर उनमें एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने बताया कि साजिद खुद उसके पास आया था, उसने खुद ये रिश्ता पेश किया था और इसने शुरू में इनकार भी किया था। ये सुनकर मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया, मगर मैंने फौरन अपने शक को बरकरार रखने की कोशिश की। वो बोलती रही कि उसकी जिंदगी में ना कोई आसाइश है, ना कोई सहारा, और वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकती। उसने कहा कि वो सिर्फ एक इज्जत की जिंदगी चाहती है, किसी पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि किसी के साथ चलकर। उसके अल्फाज में कोई बनावट नहीं थी, ना ही कोई सफाई देने की जल्दी, जैसे वो सिर्फ हकीकत बयान कर रही हो। मेरे पीछे खड़े लोग खामोश हो गए थे। वही लोग जो कुछ देर पहले सरगोशिया में फैसले सुना रहे थे अब चुप खड़े थे। मैंने महसूस किया कि मेरे अल्फाज की शिद्दत अब मेरे अपने कानों में गूंज रही है और उसकी सादगी उस सब पर भारी पड़ रही है। फिर उसने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरे अंदर की सारी सख्ती को हिला दिया। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो खुद ही पीछे हट जाएगी, क्योंकि वो किसी बाप और बेटे के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहती। उसने कहा कि वो साजिद की खुशी के लिए भी पीछे हट सकती है और मेरी इज्जत के लिए भी। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। मैं जो अल्फाज लेकर आया था वो जैसे कहीं खो गए। मेरे अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी ने जन्म लिया, मगर मेरा गुरूर अब भी मुझे मानने नहीं दे रहा था। मैंने पहली बार उस औरत को एक मुख्तलिफ नजर से देखा, न एक खतरा, न एक साजिश, बल्कि एक ऐसा इंसान जो खुद भी किसी खट्टन रास्ते पर खड़ा है। मैं बगैर कुछ कहे पलट गया। मेरे कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम मेरे अपने ही फैसलों का बोझ उठा रहा हो। पीछे खड़े लोग भी खामोशी से हट गए और गली में एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया। वापस आते हुए मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर वो वाकई गलत नहीं है तो फिर मैं किससे लड़ रहा हूँ, साजिश से या अपने ही बनाए हुए उसूलों से। मैंने झुंझलाकर कुछ कहना चाहा, मगर उसने हल्के से हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उसके उस अंदाज में न बदतमीजी थी, न बेअदबी, बल्कि एक संजीदा सा वक़ार था जिसने मुझे एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। फिर उसने निहायत साफ और मजबूत लहजे में कहा कि उसने कभी साजिद को इस रिश्ते के लिए नहीं कहा, बल्कि वो खुद उसके पास आया था। उसने बताया कि उसने बारहा उसे समझाने की कोशिश की, उसे वापस जाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि इस माशरे में उसे जैसी औरत के बारे में क्या सोचा जाता है। इसके अल्फाज में दर्द जरूर था, मगर कोई फरियाद या कमजोरी नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में इस सब को एक चाल समझा। मुझे लगा ये सब बातें वो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रही है। मैंने तल्खी से कहा कि ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर हकीकत कुछ और होती है। एक अकेली औरत किराए के घर में रहने वाली और फिर एक जवान लड़का खुद उसके पास आ जाए, मेरे लिए ये सब मानना आसान नहीं था। पीछे खड़े लोग भी सरगोशियां करने लगे, जैसे मेरी शक को मजीद हवा दे रहे हों। जुबैदा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर उसने निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा कि उसे साजिद से कुछ नहीं चाहिए, ना उसका घर, ना उसकी दौलत। उसने अपनी जिंदगी खुद गुजारी है और आगे भी गुजार सकती है। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी जो चंद लम्हों के लिए मुझे खामोश कर गई, मगर मेरा गुरूर अब भी मेरे अंदर जिंदा था। मैंने आखिरी बार करते हुए कहा कि अगर वो वाकई बेकसूर है तो इस रिश्ते से पीछे हट जाए और मेरे बेटे की जिंदगी को इस मोड़ पर ना ले जाए जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। जुबैदा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को समझाऊं, क्योंकि फैसला उसका है और वो किसी के फैसले पर जबरदस्ती असर नहीं डाल सकती। यह कहकर उसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की वो आवाज मेरे दिल पर ऐसे लगी जैसे किसी ने अंदर तक खराश डाल दी हो। बाहर खड़े लोग फौरन अपनी अपनी राय देने लगे। कोई उसे चालाक कह रहा था, कोई उसकी तन्हाई को शक की नजर से देख रहा था, मगर इस बार मैंने कुछ न कहा। मैं खामोशी से वहां से पलट आया, मगर मेरे अंदर की आवाजें अब पहले जैसी न थी। पहली बार मुझे लगा कि शायद कहानी इतनी सादा नहीं जितनी मैंने समझ रखी थी, और शायद सच वो नहीं जो लोग कह रहे हैं, बल्कि वो है जो मैं मानने से इनकार कर रहा हूँ। मैं वही खड़ा रह गया, जैसे वक्त अचानक सुस्त हो गया हो और मेरे कदम जमीन में धंस गए हो। दरवाजा बंद हो चुका था, मगर इसकी गूंज अभी तक मेरे अंदर सुनाई दे रही थी। इर्द गिर्द खड़े लोगों की सरगोशियां फिजा में तैर रही थी, मगर अब इनके अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे।
कुछ देर पहले तक इन्हीं आवाज़ों से मेरा गुस्सा बढ़ रहा था और अब वही आवाज़ें बेमानी सी लगने लगी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन ने जगह बना ली थी, ऐसी उलझन जिसमें गुस्सा भी था, शर्मिंदगी भी, और एक ऐसा खौफ भी जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं साजिद को रोक ना सका था और यही एहसास मुझे अंदर से काट रहा था। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया कि अगर बात यही खत्म नहीं हुई तो मैं किसी न किसी तरह इसे रोकूंगा, चाहे मुझे अपनी सख्ती की हदें ही क्यों ना पार करनी पड़े। उस वक्त मुझे यही लग रहा था कि मैं दुरुस्त हूँ, कि मैं अपने बेटे को एक गलत रास्ते से बचा रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि शायद खुद ही एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुका हूँ जहां से वापसी आसान नहीं होगी। दरवाजे के सामने खड़े खड़े मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक रिश्ते का नहीं रहा, बल्कि ये मेरी अना, मेरी उसूलों और मेरे अपने बेटे के दरमियान एक खिंचाव बन चुका है। मैंने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, मगर उस लम्हे एक सादा से बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर मुझे अपनी ही कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पलटा और गली से बाहर निकलने लगा। हर कदम पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद से हारने लगा हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर का गुरूर मुझे ये मानने नहीं दे रहा था। मैंने दिल को एक बार फिर सख्त किया और गुस्से से कहा कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, असल फैसला अभी बाकी है। और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ आगे होने वाला है वो मेरे हर यकीन, हर सोच और हर फैसले को एक नई आजमाइश में डालने वाला है। मैंने पीछे से आने वाली आवाज सुनी। कोई कह रहा था कि वो औरत बड़ी चालाक है, बातों में उलझा देती है। मैं पलटकर कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कहने को कुछ ठोस नहीं रहा। मैंने बस हाथ के इशारे से सबको चुप कराया और खामोशी से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे कदम चल रहे थे, मगर ज़हीन वही अटका हुआ था, इसी एक जुमले पर कि इसे साजिश से कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं पा रहा था और यही बात मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। घर पहुंचा तो सब मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मेरे चेहरे से फैसला पढ़ना चाहते हो। मैं चारपाई पर बैठ गया, जिस्म से ज्यादा ज़हन थक चुका था। मैंने गुस्से का सहारा लेकर खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की और सख्ती से कहा कि वो औरत हठधर्मी पर खड़ी है, सब कुछ साजिद पर डाल रही है। मेरे अल्फाज तो पहले जैसे थे, मगर इस बार उनमें वो यकीन नहीं था जो पहले हुआ करता था। छोटी बेटी ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने फिर वही पुरानी दलील दोहराई, इज्जत, खानदान, लोगों की बातें, मगर अंदर कहीं मुझे खुद अपनी आवाज खोखली लगने लगी थी। बच्चे खामोश हो गए और उस खामोशी में एक अजीब सा फासला पैदा हो गया। रात को जब हम सब खाने के लिए बैठे तो साजिद की खाली जगह जैसे सबसे ज्यादा बोल रही थी। मैंने कई बार उस तरफ देखा, मगर हर बार नजरें हटा ली। दिल में गुस्सा भी था कि वो मेरी बात मानने बगैर चला गया, और साथ ही एक बेबसी भी कि मैं उसे रोक ना सका। मैंने खुद को यही तसल्ली दी कि वो जिद में निकला है, थक कर वापस आ जाएगा। मगर वो रात भी गुजर गई और दरवाजा खामोश ही रहा। अगले दिन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कोई हमदर्दी के पर्दे में सवाल करता, कोई मशवरे देता, और कुछ ऐसे भी थे जो इस मामले को एक कहानी बनाकर सुनाने में दिलचस्पी रखते थे। मैं सब सुनता रहा, मगर अब हर बात मेरे अंदर पहले जैसा रद्द अमल पैदा नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं एक थकन सी आ गई थी, लड़ने की भी और साबित करने की भी। तीसरे दिन दोपहर के वक्त एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने मेरे अंदर की सारी दीवारें एक साथ गिरा दी थी। मोहल्ले की एक लड़के ने आकर बताया कि साजिद ने निकाह कर लिया है। यह सुनकर मुझे यूं लगा जैसे जमीन एक लम्हे को रुक गई हो। मेरे कानों में शोर सा भर गया और मैं कुछ देर तक समझ ही ना सका कि यह हकीकत है या कोई और अफवाह। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर कुछ टूट चुका था, ऐसा टूटना जिसकी आवाज बाहर किसी ने नहीं सुनी, मगर मेरे अंदर सब कुछ बिखर गया। शाम ढले, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानता था कि वो कौन है, मगर फिर भी दरवाजा खोलने में कुछ लम्हे लग गए। जब दरवाजा खोला तो सामने साजिद खड़ा था और उसके साथ जुबैदा। मेरे और उसके दरमियान एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उसने नजरें झुकाकर सलाम किया और मैं उस लम्हे कुछ कह ना सका। मैं चाहता तो था कि गुस्सा दिखाऊं, दरवाजा बंद कर दूं, मगर ना जाने क्यों मेरे कदम जैसे वही रुक गए। साजिद ने धीमे लहजे में कहा कि वो कोई हक लेने नहीं आया, बस दुआ लेने आया है। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा।
मैंने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। वही सुकून, मगर अब उसमें एक जिम्मेदारी भी शामिल थी। मेरे पीछे खड़े बच्चे खामोश थे और घर की फिजा जैसे किसी फैसले की मुंतजिर थी। काफी देर बाद मैं एक तरफ हट गया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये मेरी हार नहीं थी, बल्कि शायद पहली बार मैंने जीतने की जिद छोड़ दी थी। मैं वहां साकित बैठा रहा, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। इसके अल्फाज मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गए थे। मैंने हमेशा खुद को मजबूत, फैसला कुन और सब पर हावी समझा था, मगर इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं सिर्फ अपनी जिद का कैदी हूँ। घर की फिजा बोझल हो चुकी थी। दीवारें भी जैसे मेरे फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। बच्चों की नजरें मुझसे छुप छुप कर मिलती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो मगर डर रहे हो। शाम ढली तो मैं सहन में अकेला बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन थी। मैंने माजी के कई मनाजिर याद किए। जब साजिद छोटा था, मेरी उंगली थामे चलता था, हर बात पर मेरी तरफ देखता था। आज वही बेटा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने के लिए खड़ा था और मैं इसके सामने दीवार बन गया था। सवाल ये नहीं था कि वो ठीक है या गलत, सवाल ये था कि मैं उसके साथ खड़ा हूं या उसके खिलाफ। रात गहरी हुई तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार मैं उठा, चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। कदम खुद ब खुद इस गली की तरफ बढ़ने लगे जहां साजिद गया था। हर कदम के साथ मेरी अनाज जैसे टूटती जा रही थी। मैंने पहली बार यह माना कि इज्जत सिर्फ लोगों के सामने सर ऊंचा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को बचाने रखने का नाम भी है। जब मैं इस दरवाजे के सामने पहुंचा तो कुछ लम्हे रुक गया। हाथ उठाया, फिर झुका, मगर इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने साजिद था। उसकी आंखों में हैरत भी थी और नमी भी। मैंने गहरा सांस लिया और धीरे से कहा, अगर अभी भी देर नहीं हुई तो मैं अपने बेटे के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहते ही जैसे मेरे अंदर का बोझ हल्का हो गया। साजिद ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बाज़ फैसले हार नहीं होते, वो दरअसल सबसे बड़ी जीत होते हैं। मैं वही बैठा रह गया, जैसे किसी ने अंदर से मुझे खाली कर दिया हो। इसकी बातें मेरे दिल पर यूं लगी थी जैसे खामोश तीर, जिनका दर्द फौरन महसूस ना हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद को घेर लिए। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं साजिद को नहीं, खुद अपने आप को सजा दे रहा हूँ। शाम ढल चुकी थी। सहन में नीम अंधेरा फैल रहा था। हवा में खनकी थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी तपिश भड़क रही थी। मैंने माजी के दरीचे खोले और अपनी जिंदगी को एक फासले से देखने लगा। मैंने हमेशा फैसले किए, घर के लिए, बच्चों के लिए, इज्जत के नाम पर, मगर कभी ये नहीं सोचा कि जिनके लिए मैं फैसला करता हूँ वो वाकई क्या चाहते हैं। अचानक मुझे अपनी मरहूम बीवी का चेहरा याद आया। इसकी वो खामोश मुस्कुराहट, हर बात पर सर झुकाकर मान लेने की आदत। मैंने खुद से सवाल किया, अगर वो आज होती तो क्या मेरे साथ खड़ी होती या साजिद के हक में? इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। काफी देर की कश्मकश के बाद मैंने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो बेजाहिर नरम था मगर अंदर से कड़वा। मैं साजिद के रास्ते में दीवार नहीं बनूंगा, मगर इसके साथ मुकम्मल तौर पर भी नहीं खड़ा हूंगा। मैंने खुद को यह यकीन दिलाया कि मैं सिर्फ निकाह में शिरकत करूंगा, एक तमाशाई की तरह, और आखिरी लम्हे तक देखूंगा कि वो औरत अपना असल चेहरा कब दिखाती है। मेरे दिल में ये जिद अभी भी जिंदा थी कि साजिद को एक दिन हकीकत का सामना होगा, मगर किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा रखा था। निकाह का दिन आया तो फिजा में एक अजीब सी संजीदगी थी। मैं खामोशी से एक कोने में बैठा सब देखता रहा। जब मेहर और शराइत की बात आई तो मैं चौंक गया। ना कोई बड़ी रकम मांगी गई, ना कोई शर्त रखी गई। इसने सिर्फ एक बात कही, मुझे साजिद के साथ एक इज्जत वाली जिंदगी चाहिए, बस। ये अल्फाज सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। मैं जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था वो आया तो सही, मगर मेरी सोच के बरअक्स। मैंने साजिद की तरफ देखा। इसकी आंखों में सुकून था और पहली बार मुझे इस सुकून में अपनी हार नहीं बल्कि इसकी खुशी नजर आई। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात हम जिस सच को झुठलाने की कोशिश करते हैं वही सच हमारे सामने सबसे साफ खड़ा होता है। मैं आहिस्ता से उठा, आगे बढ़ा और पहली बार दिल से दुआ दी, क्योंकि इस बार मैं हारा नहीं था बल्कि अपने बेटे को जीतते हुए देखा था। मैंने इसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस खींच ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो कोई शर्त नहीं बल्कि एक ऐसा सच होगा जो मुझे अंदर से बदल कर रख देगा। फैसला तो मैं कर चुका था, मगर दिल अब भी बेचैन था।
मैंने साजिद को रोकने की आखिरी उम्मीद दिल में कहीं दफन कर दी थी, लेकिन जिद अभी जिंदा थी। ये जिद कि मैं इस रिश्ते को कभी दिल से कबूल नहीं करूंगा। खुद को बार बार यही यकीन दिलाता रहा कि मैं सिर्फ एक बाप होने के नाते निकाह में जाऊंगा, खुशी के साथ नहीं, और वक्त खुद साबित करेगा कि साजिद ने गलती की है। अगले 2 दिन घर पर यह अनजाने से खामोशी छाई रही। साजिद कम बोलने लगा, ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता और मैं भी इससे नजरें चुराता फिरता। हमारे दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी हो चुकी थी जो नजर नहीं आती थी मगर हर लम्हा महसूस होती थी। बेटियां आहिस्ता कदम रखती थी, जैसे जरा सी आवाज भी इस बोझल फिजा को तोड़ देगी। बड़े बेटे ने 1-2 बार माहौल हल्का करने की कोशिश की मगर मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन साजिद मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। इसके हाथ में एक सादा सा कागज था। अब्बा, मैंने निकाह की तारीख रख ली है। 2 दिन बाद इसने धीमी आवाज में कहा। मैंने पहले कागज को देखा, फिर इसके चेहरे को। एक लम्हे के लिए दिल में घबराहट सी हुई, जैसे कोई फैसला मेरे हाथ से फिसल रहा हो। कहाँ होगा? मैंने मुख्तसर सा सवाल किया। एक दोस्त के घर, सादा सा निकाह है। मैं कोई दिखावा नहीं चाहता। मैं हल्का सा हंसा, मगर इस हंसी में तनस ज्यादा था, खुशी कम। दिखावा तो पहले ही बहुत हो चुका है, मैंने कहा। वो खामोशी से मेरी बात सह गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं चाहता हूँ कि आप आए, बस बतौर वालिद। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर एक ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं आऊंगा, मगर याद रखो मैं आखिरी लम्हे तक देखूंगा कि वो औरत क्या शर्त रखती है। साजिद के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे इसे मेरे शक पर तरस आ रहा हो। वो कोई शर्त नहीं रखेगी अब्बा, इसने सुकून से कहा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यह सिर्फ इसकी खुशफहमी है। निकाह से 1 दिन पहले मोहल्ले में फिर सरगोशियों का बाजार गर्म हो गया। कोई कहता जुबैदा जरूर भारी हक महर मांगेगी, कोई अंदाजा लगाता वो साजिद को घर दामाद बनाने का सोच रही होगी। मैं खामोशी से सब सुनता रहा और हर नई बात मेरे शक को और मजबूत करती गई। मुझे लगने लगा कि बस अब सच सामने आने ही वाला है और मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, जैसे कोई फैसला कुन जंग होने वाली हो। निकाह वाले दिन मेरे दिल में अजीब सा खला था, ना खुशी थी ना गुस्सा, जैसे मैं किसी जश्न में नहीं बल्कि एक फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। सफेद कपड़े पहनकर जब हम साजिद के दोस्त के सादा से घर पहुंचे तो वहां की खामोशी ने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। एक छोटा सा कमरा, चंद कुर्सियां और एक कोने में बैठी जुबैदा सादगी में लिपटी हुई, जैसे इसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही ना हो। मैं हर लम्हा इसी इंतजार में था कि कब वो अपनी असल बात सामने लाएगी। निकाह शुरू हुआ तो मैं हर लफ्ज को यूं सुन रहा था जैसे किसी अदालत में बैठा फैसला सुनने का मुंतजिर हो। जब हक महर का जिक्र आया तो दिल जोर से धड़का, मगर जुबैदा ने निहायत सादगी से कहा कि जो साजिद मुनासिब समझे। यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि ये मेरे तमाम अंदाजों के खिलाफ था। फिर साजिद ने 15,000 हक महर के साथ एक शर्त का जिक्र किया तो मुझे लगा अब हकीकत सामने आएगी, मगर इसकी बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। इसने कहा कि जुबैदा अपनी पहचान और खुद मुख्तारी नहीं छोड़ेगी और वो कभी इसे मजबूर नहीं करेगा कि वो इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करे। इस लम्हे कमरे में छाई खामोशी ने मेरे अंदर का शोर मजीद बढ़ा दिया। मैंने जुबैदा की तरफ देखा तो पहली बार महसूस हुआ कि वो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है और मैं ही अपनी सोच में कैद था। निकाह मुकम्मिल हुआ तो लोग मुबारकबाद देने लगे, मगर मैं वही बैठा रह गया, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट कर दोबारा बन रहा हो। साजिद मेरे पास आया तो मैंने इसका हाथ थामकर सिर्फ इतना कहा, खुश रहो, और ये अल्फाज पहली बार मेरे दिल से निकले थे, जैसे मैंने ना सिर्फ इसे बल्कि खुद को भी आजाद कर दिया हो। साजिद ने निहायत सुकून से कहा कि वो जुबैदा को कहीं ले जाने नहीं बल्कि इसके अपने घर में इसके साथ जिंदगी गुजारने आया है। इसके लहजे में कोई बगावत नहीं थी, बस एक पुख्ता यकीन था जिसने मेरे अंदर की सारी दलीलें खामोश कर दी। मैं कुछ लम्हे तक इसे देखता रहा, जैसे पहली बार अपने ही बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कमरे में मौजूद लोग अब भी हैरत में थे, मगर मेरे अंदर जो तूफान बरपा था वो सबसे मुख्तलिफ था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने सारी जिंदगी रिश्तों को अपनी मर्जी के पैमाने से नापा, मगर आज पहली बार किसी ने मुझे दिखाया कि रिश्ता जीतने या हारने का नाम नहीं, निभाने का नाम होता है। मैं आहिस्ता से उठा, कदम भारी थे मगर दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था। मैं जुबैदा के करीब गया, वह एहतराम से खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ कह ना सका, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर मेरे अल्फाज ने तुम्हें तकलीफ दी हो तो माफ कर देना।
मेरी आवाज में वो गुरूर नहीं था जो हमेशा रहा करता था। शायद इसलिए कि आज मैं पहली बार अपने आप से हारा था। जुबैदा ने बस हल्का सा सर झुका दिया। इसकी आंखों में शिकायत नहीं थी और यही चीज मेरे लिए सबसे बड़ी सजा भी थी और सुकून भी। जब हम बाहर निकले तो धूप पहले जैसी ही थी, गलियां भी वही थी, मगर मुझे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। साजिद मेरे साथ चल रहा था, बल्कि ये कैसा इंसान लग रहा था जो मुझसे ये कदम आगे निकल चुका था। मैंने दिल ही दिल में तस्लीम किया कि कुछ रिश्ते हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समझ से संभालते हैं, और शायद मैंने ये समझ बहुत देर से सीखी थी। इस दिन मैंने सिर्फ अपने बेटे की शादी कबूल नहीं की बल्कि अपनी सोच के एक दरवाजे को भी खोल दिया जो बरसों से बंद था। मैं कुछ देर तक साजिद के सामने खामोश बैठा रहा, जैसे अल्फाज ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। उसकी बातें सिर्फ जुमले नहीं थे, वो मेरे माजी का हिसाब थी। वो लम्हे थे जिन्हें मैंने हमेशा मसरूफियात और जिम्मेदारी के पर्दे में छुपा दिया था। मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने वाकई अपनी बीवी को सब कुछ दिया सिवाय इसके साथ के जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। साजिद की आवाज में कोई इल्जाम नहीं था, मगर इसकी सच्चाई मेरे अंदर गहराई तक उतर गई थी। मैंने आहिस्ता से सर उठाया और साजिद को देखा। वो अब भी वही मेरा बेटा था, मगर आज इसकी सोच मुझसे कहीं आगे निकल चुकी थी। मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, बेटा, शायद मैंने जिंदगी को हमेशा गलत जाविये से देखा। मैं समझता रहा कि घर चलाना ही काफी है, मगर घर बसाया कैसे जाता है यह मैं कभी सीख ही नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आज ये कमजोरी नहीं बल्कि सच का एतराफ था। साजिद ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। इसके लम्स में वही अपनायत थी जो बचपन में हुआ करती थी। अब्बा, अभी भी देर नहीं हुई, इसने नरमी से कहा। यह जुमला मेरे लिए किसी नई सुबह की तरह था। मैंने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार रहा हूँ, और फिर एक फैसला किया। इस बार जिद का नहीं, समझ का। मैं खड़ा हुआ और कहा, चलो वापस चलते हैं जुबैदा के घर। साजिद ने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद भी जाग उठी थी। जब हम दोबारा इस दरवाजे के सामने पहुंचे तो इस बार मेरे हाथ में गुस्सा नहीं, हिचकिचाहट थी। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो जुबैदा सामने थी, वही सादगी, वही सुकून। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कभी कभार आकर बैठ जाया करूं। मेरी आवाज में एक बाप का गुरूर नहीं बल्कि एक इंसान की दरख्वास्त थी। जुबैदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया, और यही जवाब मेरे लिए काफी था। इस दिन मैंने सिर्फ अपने बेटे को नहीं समझा बल्कि खुद भी पहचान लिया। मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते हुक्म से नहीं, एहसास से जीते जाते हैं, और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था जो मुझे इतनी देर से मगर सच्चाई के साथ मिला। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सामने एक सच का आईना रख दिया हो, और इस आईने में मेरा अपना वजूद बिखरा हुआ, लरसता हुआ नजर आ रहा था। साजिद खामोशी से उठा और टेढ़े हुए लहजे में बोला कि वो जानता है ये सब सुनना मेरे लिए आसान नहीं, मगर इसने दिल की गहराई से ये रास्ता चुना है। वो चला गया और मैं वही साकित रह गया, आंखों में नमी, दिल में बोझ, और ज़हन में एक ऐसा सवाल जो शायद बरसों पहले पूछ लेना चाहते था, क्या मैं वाकई एक अच्छा हमसफर था? इसके जाने के बाद वक्त जैसे ठहर सा गया। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में ढल गई, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी जमुत तारी रही। कमरे की मध्यम रोशनी में माजी के कई मंजर एक साथ उभरने लगे, मसरूफियात का कामयाबियां, जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच कहीं दबती हुई यह खामोश सी औरत जो मेरी बीवी थी। मैंने आंखें बंद की तो इसका चेहरा सामने आ गया। वो कमगो थी, शिकवा कभी जबान पर ना लाती थी। मैंने हमेशा इसकी खामोशी को इसकी ताकत समझा, मगर आज महसूस हुआ कि शायद वो इसकी मजबूरी थी और मैंने इस मजबूरी को अपनी आसानी बना लिया था। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि बड़े बेटे ने आकर धीरे से कहा, अब्बा, सब लोग जा चुके हैं। मैंने हल्का सा सर हिलाया, मगर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। सब नहीं गए थे। कुछ यादें, कुछ अधूरे सवाल और कुछ अनकहे जज्बात वही मेरे साथ बैठे थे। मैं आहिस्ता कदमों से अंदर कमरे में आया। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर नजर ठहर गई। हम सब एक साथ, और वो मुस्कुरा रही थी जैसे आज भी मुझे देख रही हो। मैं तस्वीर के करीब गया, उंगलियों से इसके चेहरे को छुआ और बेइख्तियार लबों से निकल गया, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। इसी लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो, जैसे देर से सही मगर मैंने सच को कबूल कर लिया हो, और शायद यही कबूलियत एक नई शुरुआत का पहला कदम थी। रात भर नींद मेरी आंखों से दूर थी।
मैं बिस्तर पर लेटा बार बार करवटें बदलता रहा, मगर सुकून कहीं नहीं था। कभी साजिद के वो मजबूत अल्फाज कानों में गूंजते, कभी जुबेदा की परसुकून मगर नम आंखें सामने आ जाती, और कभी मोहल्ले वालों की सरगोशियां जहन में शोर मचाने लगती। मैंने खुद से सवाल किया कि लोग क्या कहेंगे, मगर इसी सवाल के पीछे एक और हकीकत भी सर उठाने लगी। आखिर लोग कब तक कहते रहेंगे? क्या हर फैसला वाकई दूसरों की जबान का मोहताज होता है? अगली सुबह मैं मामूल से हटकर मस्जिद चला गया। नमाज के बाद भी मैं वहीं बैठा रहा। हालांकि आदत के मुताबिक फौरन घर लौट आता था। दिल जैसे रुकना चाहता था, सोचना चाहता था। इमाम साहब ने मेरी तरफ देखा और नरमी से पास आकर बैठ गए। उन्होंने खैरियत पूछी तो मैंने तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना कहा कि इंसान को अक्सर सच बहुत देर से समझ आता है। वो मुस्कुराए और बोले कि देर से सही, समझ आ जाना भी रहमत होती है। इनके ये अल्फाज मेरे अंदर कहीं गहराई में जाकर ठहर गए, जैसे किसी ने मेरे बोझल दिल पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। जब मैं घर वापस आया तो माहौल बदला बदला सा लगा। मोहल्ले में वही लोग थे, वही गलियां थी, मगर बातों की शिद्दत कम हो चुकी थी। कुछ नजरें अब भी सवाल करते थे, मगर इनमें पहले जैसा तनज नहीं था। शायद वक्त ने इनके लहजों को नरम कर दिया था, या शायद एक सच्चे फैसले ने खामोशी सिखा दी थी। दोपहर के करीब साजिद आया। इसके हाथ में कुछ कागजात थे और वो मेरे सामने आकर रुक गया। इसने बताया कि कुछ दिनों के लिए वो जुबेदा के घर के करीब रहेगा ताकि सब इंतजाम संभाल सके। मैंने इसकी तरफ देखा। अब मेरे दिल में ना वो पुराना गुस्सा था, ना जिद, बस एक अजीब सी थकन थी जो आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि ठीक है। मेरी आवाज की नरमी सुनकर वो खुद भी चौंक गया। इसने पूछा कि क्या मैं अब भी नाराज हूँ? मैंने गहरी सांस ली और पहली बार सच को लफ्ज दिया कि नाराजगी से ज्यादा अब मुझे समझ आ रही है। मैंने इसे बताया कि मैंने इसे रोकने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि मैं खुद को दुरुस्त समझता रहा, मगर हर दुरुस्त चीज हमेशा मुकम्मल नहीं होती। वो खामोशी से सुनता रहा। मैंने इसकी आंखों में देखकर आहिस्ते से कहा, यह रास्ता तुमने चुना है, अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुमने इस रिश्ते को सच्चाई और वफा से निभा लिया तो शायद तुम कर जाओगे जो मैं ना कर सका। मेरे ये अल्फाज सुनकर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर इस बार वो दुख की नहीं थी, वो ये खामोशी तस्कीन थी। वो आगे बढ़ा, पहली बार हिचकिचाते हुए मेरे हाथ को छुआ और आहिस्ता से बोला, मैं कोशिश नहीं करूंगा अब्बा, मैं निभाऊंगा। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से कायम रहते हैं, और मैंने देर से ही सही मगर अपने बेटे को खोने के बजाय इसे पालना सीख लिया था। साजिद की आंखों में नमी तैर गई थी, मगर इस नमी में कमजोरी नहीं थी, एक सुकून था, एक खामोश दुआ जैसे एहसास। इसने धीमे लहजे में कहा कि मेरी यही बात इसके लिए सबसे बड़ी दुआ है। मैंने बेइख्तियार इसके सर पर हाथ रख दिया। वो लम्स था जो शायद बरसों से कहीं खो गया था, आज लौट आया था। इस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि बाप होना सिर्फ हुक्म देने या रोकने का नाम नहीं, बल्कि समझने और साथ देने का हुनर भी है। शाम ढल रही थी जब मैं अकेला जुबेदा के घर के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा बंद था, मगर दिल के अंदर एक दरवाजा खुल चुका था। मैंने हल्के से आवाज देकर सलाम किया। कुछ लम्हों बाद वो दरवाजे पर आई, हमेशा की तरह सादा और पुरसुकून। मैंने इससे नजरें मिलाने के बजाय आहिस्ता से पूछा कि वो ठीक है। इसने बस सर हिला दिया। इस खामोशी में न शिकवा था न कोई सवाल। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे एक बात कहनी है। मेरे अल्फाज पहले जैसे सख्त नहीं रहे थे, इनमें नरमी थी और कहीं ना कहीं पछतावा भी। मैंने एतराफ किया कि जो कुछ मैंने कहा था शायद वो दुरुस्त नहीं था, शायद मैंने नाइंसाफी की थी। वो खामोशी से सुनती रही, जैसे हर लफ्ज को बगैर किसी रद्द अमल के अपने अंदर जज्ब कर रही हो। फिर इसने बहुत आहिस्ता से कहा कि जिंदगी की कुछ हकीकतें वक्त से पहले समझ में नहीं आती। इस जुमले में ना कोई ताना था, ना जीत का एहसास, बस एक सादा सी सच्चाई थी। इस बार मैंने इससे इख्तिलाफ नहीं किया। शायद पहली बार मैं वाकई सुन रहा था। वापस मुड़ते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा। शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा उजाला फैल रहा था। दिल हल्का लग रहा था, जैसे बरसों का कोई बोझ खामोशी से उतर गया हो। और मैंने महसूस किया कि बाज़ औक़ात इंसान हार कर नहीं बल्कि मान कर जीत जाता है। दिल में एक अजीब सा सुकून नजर आया था, जैसे बरसों से रखा हुआ कोई बोझ खामोशी से उतर गया हो।
मैं जानता था कि आगे का रास्ता हमवार नहीं होगा, लोग अब भी बातें करेंगे, सवाल भी उठेंगे, मगर इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे के साथ खड़ा रहूंगा, शोर से नहीं मगर सच्चाई के साथ। इस रात मैंने अपनी मरहूम बीवी के लिए लंबी दुआ की और अपने लिए भी, कि जो समझ अब आई है काश ये वक्त रहते आ जाती। वाकई वक्त अजीब होता है, कल जो बात दिल को चीर देती है वही आज मरहम बन जाती है। निकाह के बाद जिंदगी भी जाहिर अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आई थी, मगर मेरे अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। वही गलियां, वही लोग, वही माहौल था, लेकिन मेरी नजर बदल गई थी। अब मैं हर बात को सिर्फ इज्जत और लोगों की राय के पैमाने पर नहीं नापता था, बल्कि इंसान के जज्बे, इसके इरादे और इसकी सच्चाई को भी महसूस करने लगा था। मोहल्ले में सरगोशियां मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। कुछ नजरें अब भी सवाल करती थी, कुछ होंठ अब भी दबी आवाज में बातें करते थे, मगर अब इन बातों का वजन मुझ पर पहले जैसा नहीं रहा था। शायद इसलिए कि मैं अपने अंदर के सबसे बड़े सवाल का जवाब पा चुका था। एक सुबह फजर के बाद मैं सहन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सर उठाया तो साजिद सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था, मगर आज इस सुकून में हल्की सी थकन भी शामिल थी। इसने आहिस्ता से बताया कि जुबैदा बेगम की तबीयत ठीक नहीं, वो इन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा है। ये सुनते ही मेरे दिल में एक अनजाना सा दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जाग गई हो। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ है? तो इसने बस इतना कहा कि कमजोरी है, उम्र का असर है। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। मेरे जहन में फौरन अपनी बीवी का चेहरा उभर आया, वही खामोश तकलीफ, वही बर्दाश्त। मैंने जेब से कुछ पैसे निकाले और साजिद की तरफ बढ़ा दिए। इसने हैरत से मुझे देखा, मगर मैंने इसे रोक दिया। मैंने नरमी से कहा कि ये कोई एहसान या फर्ज है। इसने खामोशी से पैसे ले लिए और चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद मैं देर तक वही खड़ा रहा। मुझे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि शायद यही वो लम्हा था जहां मेरा गुरूर मुकम्मल तौर पर टूट गया और इसकी जगह एक बाप, एक इंसान और शायद एक बेहतर हमसफर पैदा हो रहा था। मैंने अपने अंदर के गुरूर को आखिरकार खामोशी से दफन कर दिया था। शाम ढली तो साजिद वापस आया। इसके साथ जुबैदा भी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही थी, जैसे हर कदम पर थकन का बोझ हो, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी इत्मीनानत थी। वो मेरे सामने आकर ठहरी और पहली बार सीधा मेरी तरफ देखकर धीमे लहजे में बोली, शुक्रिया। ये सिर्फ एक लफ्ज था, मगर इसमें ना कोई शिकवा था न मलामत, सिर्फ खुलूस। इस लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपनी ही नजर में छोटा हो गया हूँ। मैंने नजरें झुका ली और नरमी से कहा, बैठे, चाय पीते हैं। ये जुमला मेरे अपने लिए भी अजनबी था, मगर शायद तब्दीली ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है। घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब इस नए मंजर को समझने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बेटियां हैरान जरूर थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जुबैदा आहिस्तगी से चारपाई पर बैठ गई और साजिद इसके करीब आई से खड़ा था, जैसे साया कभी जिस्म से जुदा नहीं होता। चाय आई तो कुछ देर तक सिर्फ कपों की हल्की आवाजें गूंजती रही। फिर जुबैदा ने खामोशी तोड़ी और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे सुकून मिलेगा। मैंने इसकी तरफ देखा और पहली बार बगैर तलखी के जवाब दिया, सुकून किस्मत से नहीं, नीयत और वादे से आता है। साजिद ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही मानोस एहतराम लौट आया था जो बरसों पहले खो गया था। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ बाप नहीं रहा, मैं इसका सहारा बन गया हूँ। चाय के बाद जुबैदा ने इजाजत चाही। साजिद ने बड़े एहतमाम से इसे सहारा दिया और दरवाजे की तरफ ले गया। मैं भी इनके पीछे आकर खड़ा हो गया और इन्हें जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल में अब ना कोई खिंचाव था, ना कोई शक, सिर्फ दुआ थी। इसी रात चंद मोहल्लेदार आए। बशीर भी इनमें शामिल था। इसके लहजे में अब वो काट नहीं था, बल्कि एक तरह की नरमी थी। इसने कहा, लगता है लड़के ने वाकई जिम्मेदारी उठा ली है। मैंने सुकून से जवाब दिया, इंसान को बड़ा उम्र नहीं बनाती, जिम्मेदारी बनाती है। वो खामोश हो गया, जैसे इसे भी कोई नई बात समझ आ गई हो। रात गए मैं अपने कमरे में आया। दीवार पर लगी अपनी बीवी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर देर तक इसे देखता रहा। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये कबूलियत के थे। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने देर कर दी, मगर अब समझ गया हूँ। इस लम्हे मेरे अंदर एक नया फैसला जन्म ले चुका था। मैं चाहता था कि साजिद और जुबैदा ये महसूस करे कि अब ये रिश्ता सिर्फ इन दोनों का नहीं रहा, बल्कि इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल है, बतौर सहारा, बतौर कबूलियत। अगली सुबह मैं मामूली से पहले जाग गया। फजर की अजान से पहले ही आंख खुल गई।
मगर इस बार दिल हल्का था। सहन में निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी रोशनी फैल रही थी, जैसे रात आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही हो। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी भी एक नई मरहले में दाखिल हो रही है। नमाज के बाद मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि आज मैं खुद साजिद के पास जाऊंगा, इसके साथ चलूंगा, इसके फैसले का हिस्सा बनूंगा, सिर्फ मानने वाला नहीं बल्कि साथ निभाने वाला। मैंने अपने दिल के अंदर बरसों से जमी हुई सख्ती को आहिस्ता आहिस्ता पिघलते महसूस किया था, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर एक दरवाजा खोल दिया हो जिसके पीछे नरमी और समझबूझ छुपी बैठी थी। इसी एहसास के साथ मैंने साजिद को आवाज दी और वो फौरन आ गया, जैसे इसे पहले ही अंदाजा हो कि आज कुछ बदलने वाला है। मैंने मुख्तसर मगर मजबूत लहजे में कहा कि मुझे इसके साथ जाना है, और जब इसने हैरत से पूछा कहाँ, तो मैंने पहली बार बगैर किसी झिझक के जुबैदा का नाम लिया। इसके चेहरे पर उभरती हुई खुशी और हैरत ने मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी भर दी। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे, मगर इस खामोशी में अब कोई बोझ नहीं था बल्कि एक नई समझदारी का सुकून शामिल था। जब हम जुबैदा के घर पहुंचे तो इसने दरवाजा खोला। मुझे देखकर इसकी आंखों में लम्हा भर को चौंक जरूर आई, मगर फौरन ही इसने खुद को संभाल लिया और अदब से हमें अंदर आने की दावत दी। इसका घर सादा जरूर था, मगर इस सादगी में एक अजीब सी वक़ार और तरतीब थी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर होने के बावजूद अपनी कहानी सुना रही हो। मैंने पहली बार इससे हाल हवाल पूछा और इसके मुख्तसर जवाब में छुपी थकन और तन्हाई को महसूस किया। इसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी का असल बोझ उम्र नहीं बल्कि अकेलापन होता है। मैंने साजिद की तरफ देखा और इसे समझाया कि वादे सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो जिम्मेदारियां होते हैं जिन्हें निभाने के लिए इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। इसने बगैर हिचकिचाहट के अपने अज़म का इजहार किया और इस बार मैंने इसकी बात पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद मैंने खुद को बदलता हुआ पाया। मैं अब हुक्म देने वाला बाप नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा रहनुमा बन गया था जो साथ चलना जानता है। वापसी पर जब साजिद ने मेरा हाथ थामा तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि एतमाद से मजबूत होते हैं। घर आकर मैंने सब बच्चों को इकट्ठा किया और साफ अल्फाज में ऐलान किया कि अब ये रिश्ता सिर्फ साजिद का नहीं बल्कि हम सबका है और इसे इज्जत देना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस ऐलान के बाद घर के माहौल में एक खामोशी से अहम अंगी पैदा हो गई, जैसे सबने दिल ही दिल में इस तब्दीली को कबूल कर लिया हो। रात को जब मैं अपनी मरहूम बीवी की तस्वीर के सामने बैठा तो पहली बार मुझे अपने किए पर पछतावे के साथ साथ सुकून भी महसूस हुआ। मैंने एतराफ किया कि मैंने देर जरूर की, मगर अब मैंने वो सीख लिया है जो शायद बहुत पहले सीखना चाहिए था, कि मोहब्बत का असल मतलब साथ देना है, रोकना नहीं। अगले दिन जब मैं मोहल्ले में निकला तो लोगों की नजरें और सवालात पहले जैसे ही थे, मगर अब मैं बदल चुका था, इसलिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं रही थी। मैंने जान लिया था कि इज्जत दूसरों की जबान से नहीं बल्कि अपने रवैये से पैदा होती है। वक्त गुजरता गया और साजिद अपने वादे पर कायम रहा। जुबैदा के चेहरे पर इत्मीनान बढ़ता गया और मैंने खुद को एक नए इंसान के तौर पर पाया। कहानी का अंजाम भी वैसा नहीं रहा जैसा मैंने कभी सोचा था। अब ये किसी जिद या अना की जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि समझौते, कबूलियत और मोहब्बत की जीत बन चुकी थी। मैंने अपने बेटे को इसकी मर्जी से जीने की आज़ादी दी और इसी आज़ादी में मुझे अपनी खोई हुई सुकून की दुनिया वापस मिल गई, जहां रिश्ते हुक्म से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।